Good. Ashok bhai, it's I 201. will, Should we start? yeah, I think so. Yeah, okay. Good afternoon, friends, and a very warm welcome. After a week, we are back again for our weekly sessions of MindSpeak, the webinar series we shall be conducting and trying to conduct on every Sunday at 2 p.m. Our last webinar, if you remember, on Kaizen in the month of April was on cut waste, not cost. It was conducted by Mr. Jayant Murthy. We had a very high number of views that had already crossed 5,000 at that time. Kaizen, which translates roughly to good change, is a Japanese productivity philosophy that helps you organize everything you do. In short, it means constant and continuous improvement. And it is a mindset you can apply anywhere or any job. Today's topic of discussion is build your team. Your team will build your business. And the speaker for today is Mr. Narasimhan Gopalakrishnan, who is a director at the Kaizen Institute, East Africa and Farms. He has enjoyed a very long professional career with Kaizen. He spent 11 years in sales and services. He spent 14 years with operations, capex, and discrete manufacturing, and 7 years with consultancy and coaching. His professional expertise extends on hands-on experience in implementation of the Kaizen practices for almost 2 decades. As a consultant of Kaizen Institute, he has independently led several transformational projects in various companies in India and Africa. He's also mentored multi-lean projects in various industries, in manufacturing, in pharmaceutical, confectionery, floriculture farms, etc. And he has been a recipient of various awards, including the Consultant of the Year Award in 2019. He's also held the responsibility of value stream leader at the Kaizen College. He has a diploma in electrical and electronics engineering. He has an EMBA in operations management training and development from NIBM. And he has served on horticultural farms, the Aurobindo Pharma, Sandvik Pipes, Nokia Solutions Networks, PSG Hospitals, BMW, and many, many other companies. Before we begin, let me remind you that this is a total 90-minute session where we will have a 75-minute time roughly for the presentation, and we will keep about 15 minutes for a question and answer. So I request you all to kindly make a note of all your questions while the presentation is on, but do not put them on the chat right now, and try to put them towards the end of the session, say around 3:15, so that we can then pick up those questions which are right and then put them up for discussion. I hand you over to Mr. Gopalakrishnan to start his presentation. Sir. Thank you, sir. Thank you. Good afternoon to all of you. Namaskar, namaste. It's quite a tough time. दोपहर को 2 बजे सबको भाषण देना, ऐसा लगेगा कि कोई लोग तो खा के बैठे होंगे, जैसे कि मैं लोरी सुना रहा हूँ, आपको बढ़िया सी नींद आएगी. I will try to keep you engaged. अगर नींद आ गया तो प्लीज सो जाना. That's what my request is. We will try to keep you engaged throughout the time, and I hope Hindi में भी अगर चलेगी तो I have seen many of some of the South Indian names also among the participants. They might be having some difficulty, if at all. Please, if you have any problem, हिंदी में जब बात करते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा है, you can always stop me. And for some obvious reasons to save on the bandwidth, मैं मेरा वीडियो को बंद करता हूँ, स्क्रीन शेयर रहेगा. मैं during the question and answers I can start my video again. So
as this title says, to grow your people will grow your business. This is what that we are going to talk about, and particularly आपका जो industry है, जो jewelry industry है, which is 100% labor intensive industry. This entire segment is a labor intensive segment. When it is a labor intensive segment, and then there is a huge potential for us to work on this, because स्किल ऐसी एक चीज है, कारीगरी या कलाकारी जो बोलते हैं वो एक चीज है, sometimes it dies with some of the experts. प्रॉब्लम ऐसा है कि जो जिन्होंने सीखा है वो ऐसे सोचते हैं कि मैं इतना मेहनत करके सीखा, मैं क्यों दूसरे को सिखाऊं, वो अपने आप उनके साथ ही वो भी मर जाता है, and then it is left with others to try and learn like that. So ये जो सेशन जो 75 minutes का जो रहेगा, it will give you an overview of a particular methodology of training people. जबकि ये अमेरिका में शुरू हुआ था, but this was successfully deployed by Japanese in all their industries, जिनके कारण they had a very good flourishing business, and then they had multiple inputs. जैसे कि most of the organizations अगर इंडिया में भी देखेंगे, 1 or 2-3 brains are working in the organization. बाकी सब तो रोबो जैसे ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, मेरे बाल ऐसे नहीं पके हैं, all these things we could able to hear. So people को रोबो जैसे जब ट्रीट करते हैं, when brains are not coming into picture, तो उसका रिजल्ट उस हिसाब से निकलता नहीं है. But here what we are trying to do is we are trying to exploit the potential जो भगवान ने हमको जो 1.5 किलो की जो वस्तु दी है, जो एकदम hardest bone मतलब स्कल के अंदर बिठाया हुआ है, उसको इस्तेमाल करें. When every brain starts putting in their inputs, the outcome is something fabulous. वो कैसे करने का है, that is what we are trying to say. Enhance the skill, engage, educate and empower. We have to understand these three. ये जो 3 ये है, engage, educate और empower, अगर हम अपने employees को करेंगे, not necessarily employees, even to your peers, your subordinates, your managers, anybody who is a leader has to develop his subordinate like this way. Engage, educate and empower. If we did these 3 E's, excellence जो 4th E है वो अपने आप आपके घर में आके बैठ जाएंगे. इसी के दौरान I'm just taking you through this. We will see how it will. To give you a content, क्या रहेगा, background क्या है, कहाँ से ये शुरू हुआ था, क्यों करने वाले हैं, and then we will see about the learning pyramid. TWI जो आप इधर देख रहे हैं, जिसका मतलब है ट्रेनिंग विद इन इंडस्ट्री, वो कैसे करने के. हम लोग ट्रेनिंग जैसे बोला तो सबको ये लगता है कि कोई क्लासरूम में एसी रूम में बैठे हैं, स्लाइड शो चलता रहेगा, कोई बक 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 करता रहेगा, बाकी लोग इधर सोते रहेंगे. ऐसा नहीं है. दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग. दैट इज व्हाट ये ट्रेनिंग इन इंडस्ट्री कैसे सक्सेस हुआ, एंड देन उसका मकसद क्या है. सुपरवाइजर अगर हम बोलते हैं या मैनेजर किसी को कहते हैं, उनका 5 कैरेक्टरिस्टिक, द मेन 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सुपरवाइजर और अ मैनेजर, वो क्या होता है, कैसे उनको करेंगे, TWA मॉडल में कैसे करेंगे, और इन सबको 4 स्टेप में बांटा गया है. एंड ओनली इन 4 स्टेप्स वी विल जस्ट एक्सप्लेन यू ऑल ऑफ दिस. दिस इज व्हाट दिस 75 minutes is going to be. Sometimes we may have some crush of time at the end of the time, but we will see how we can conclude. It's all about business. अगर आपको बढ़ाना है, आपका धंधे को अगर आपको आगे ले जाना है, विस्तार करना है, एक्सपेंड करना है, ग्रो करना है, whatever that you want to do for your business, कैसे करेंगे. It's not a motivation statement that build your people and your people will build your business. ऐसी नहीं है. It is not a simple slogan नहीं है ये. अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, सबको अपने आपस में रखने में कोई मतलब नहीं है. We have to make it open. It should be an open book. Everybody in our industry should understand what we are trying to do, to bring in some sort of ownership in whatever they do. Toyota यही कहते हैं, we build our people and our people build the cars. When we are, हमारा जो ब्रांड इमेज जो लेके जब कोई भी प्रोडक्ट बाहर जा रहा है, it goes with our own pride, what you say, हमारा ज़मीर उसके साथ जाता है.
हमारा इज्जत का सवाल है. So all our workers, employees working in this industry should have the same thing. अगर ये ज़ेवरात अगर बाहर जा रहा है, whatever that it carries my pride also. I cannot take a risk of having something defective given to the market. ये not only this, Workforce 20, a study from Oxford Economics, ये कहते हैं कि जो कोई भी कंपनी above average revenue कमाता है, those companies have always paid attention to their workers. अपने आदमी लोगों को बढ़ावा दो. If you do not take care of your employees, they will not take care of your customers. आपने ये सुना होगा, if you don't take care of your customers, somebody else will take care. But here, if you do not take care of your people, they will not take care of your customers. So अगर हम अपने ग्राहकों को अपने खुशहाल में रखना चाहते हैं तो अपने आदमी लोगों को बढ़ावा देना चाहिए. When we say development, it is all about capability development. I always jocularly say that in India, the moment we start yearning, we stop learning most of the time. क्योंकि इंडिया के हिसाब से any degree or diploma is just a ticket to land in a job. एक बार नौकरी मिल गई, पढ़ाई खत्म. उसके हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ते नहीं हैं, हम लोग अपने ज्ञान को विस्तार करने के लिए पढ़ते नहीं हैं. हालांकि ये दूसरी बात है कि whatever that we study in our college or school has nothing to do with what we are doing. अपने काम को कैसे मैं दूसरी तरीके से करूं और आसानी से करूं, विदाउट मिस्टेक्स करूं, इसके बारे में कभी सोचते नहीं है. अगर आप कुछ सर्वे करेंगे, अनफॉर्चुनेटली द bitter truth is 50 to 60% of the people do not like their job but they still keep doing it. जब वो सुबह उठ के अरे यार आज भी नौकरी पे जाना पड़ता है, ऐसे एटीट्यूड के साथ कोई निकलेगा गया काम से, what type of input that he will be giving. So we have to make sort of a motivation. Not only that, all the enterprises has to develop a capability development pertaining to the business goal. अपना जो business goal है उस हिसाब से अपने आदमी लोगों को तैयार करना पड़ेगा. This is very very essential. ये अनिवार्य है. आज के most of the time people think कि मैं क्यों इतना खर्चा करके मैं ट्रेनिंग दूं और वो ट्रेनिंग सीखने के बाद मुझे छोड़ के दूसरे जगह पे चले जाएगा. Yes, it can happen, it might happen, but ये भी सोच लीजिए, if you are thinking that training is expensive, try ignorance. वो उससे भी बहुत महंगा है. That is what we are trying to say. We cannot import the entire talent. अगर किसी को आप हायर कर रहे हो, आज आप इंटरव्यू कर रहे हो किसी को, वो अपने साथ साथ पूरा टैलेंट लेके आएगा, ये कोई, there is no hard and fast rule. We are hiring for their knowledge, we are hiring them for their skills, but at some time their skills and their knowledge may not be useful. हमारे बिजनेस तरीके के लिए वो सही भी नहीं होगी. उसको थोड़ा अपने लिए कस्टमाइज तो करना ही पड़ेगा. अपने लिए वो कस्टमाइज करके उस हिसाब से उनकी एक्सपर्टीज को थोड़ा और मरोड़ के हमारे बिजनेस के लिए कैसे उसको बढ़ावा दे. दैट इज व्हाट वी हैव टू ऑलवेज डू. बिकॉज टैलेंट में जगह हम, अनफॉर्चुनेटली इंडियन फिनेंस भी ऐसे, नॉट ओनली इंडियन फिनेंस, थ्रू आउट द वर्ल्ड फिनेंशियल डिटेल अगर आप देखेंगे, जिसके पास दिमाग है, जो सोच सकता है, उसको हम लोग मैन पावर कास्ट कहते हैं. और जिसके पास जान नहीं है, ऑल दिस असेट्स, मशीन, टेबल, कंप्यूटर, इसको हम असेट कहते हैं. आदमी लोगों को कास्ट, और जिसको जान नहीं है, कोई अपने बारे में सोच नहीं सकता है अपने हिसाब से, उसको असेट्स कहते हैं. क्योंकि फाइनेंस ऐसे हमारे दिमाग को डाल के रखा है. That is the paradigm that we have got. उस mindset से बाहर आना पड़ेगा. People are not problems. People are problem solvers. Unfortunately, most of the enterprises do not trust their employee. एक prejudice रह जाता है employee और employer के बीच में. वो prejudice एक screen बन के दोनों को नजदीक आने से रोक जाता है. This is also one of the reasons some of the best of the relations are not getting developed within the organization. जिसकी वजह से क्या होता है, तुम जो पगार दे रहे हो उस हिसाब से मैं काम करूंगा. I am only with you. This is a simple story. ताजमहल बन रहा था, and then Shah Jahan was going on rounds. तो
सब कारीगरी कलाकारी लोग काम कर रहे थे। किसी ने पूछा, शाहजहां ने पूछा, यार व्हाट आर यू डूइंग? बोले कि आप देख नहीं रहे हो, मैं मेरा रोटी कमा रहा हूँ। देन आफ्टर सम टाइम ही वेंट टू समबडी एल्स, उनको पूछा आप क्या कर रहे हो भाई? बोले कि मैं दुनिया का बेस्ट फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट्स बना रहा हूँ। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एटीट्यूड्स। देयर आर पीपल हु आर वर्किंग ओनली फॉर सैलरी, देयर आर पीपल हु जी जान लगा के काम करने वाले भी रहते हैं। वी मे हैव टू आइडेंटिफाई इट। वो आइडेंटिफाई करके किसको बढ़ावा देना है वो हर किसी के इसमें है, बट वो भी कैसे करेंगे, दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट। पहले क्या हो गया था, आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल स्टोरी। वर्ल्ड वार 2 आया था। वर्ल्ड वार 2 जब आया था तो विक्रम के पास सब लोग जंग लड़ने चले गए थे, तो उनके लिए अम्यूनिशन बनाने के लिए उनके पास कोई बंदे काम करने वाले नहीं थे। There were no skilled employees to make guns or tanks or nothing, but everybody is there fighting. They are losing ammunition. They want more and more ammunition. कैसे करेंगे, कैसे सप्लाई करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। Then they formed a group. अमेरिका में एक ग्रुप फॉर्म किया था। This entire group of people came together and found out something called as training within industry. मतलब इंडस्ट्री के अंदर ही हम लोग ट्रेनिंग देंगे, जो कोई उस इंडस्ट्री के बारे में रहेगा उतना ही ट्रेनिंग देंगे। हम दुनिया भर का इंजीनियरिंग या ज्ञान नहीं उनको बांटेंगे, जो काम करने के लिए जितना ज्ञान चाहिए उतना ही मैं दूंगा, और वो भी जल्दी सीखने के लिए करूंगा। ऐसे करके उन्होंने एक ट्रायल किया था। जो भी एम्प्लॉइज है जो जंग लड़ने चले गए हैं, उनकी बीवियों को लेके आया, उनको सिखाया, और उनसे दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग दिस अम्यूनिशन, दिस गन्स, राइफल्स एंड ऑल। एंड यू वोंट बिलीव, उनका ट्रेनिंग 10-10 दिन का ट्रेनिंग दिए थे, एंड दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मोर देन व्हाट देयर हस्बैंड्स यूज्ड टू प्रोड्यूस। एंड दिस ट्रेनिंग विद इन इंडस्ट्री बिकेम अ बिग सक्सेस। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 अमेरिका इसके बारे में भूल गए थे, but Japanese learned it, they took it there, and then they went and they made it a big success. In fact, even in India, Indian government में health ministry में there are manuals for this training within industry, which started somewhere in the 50s, but somewhere after 56 they stopped practicing it, and this is why people have forgotten it. आज most of you might have had a lockdown and आप अभी शुरू भी कर रहे होंगे, but when you are restarting post lockdown, you may be having some sort of problems. कैसे कैसे प्रॉब्लम है? एक तो attrition है, जो skilled बंदा है वो चला जाता है। दूसरा migrants है। Most of your workers are from West Bengal, I believe, because they are skilled in jewelry industry. Whatever I have seen, most of the guys skilled expertise are from Bengal and few from Tamil Nadu and Kerala. But majority is from Bengal. अगर वो लोग अपने गांव चले गए, and now coming back becomes a big question. वो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? उनके साथ ये स्किल चला गया क्या? पता नहीं है। डाउनफॉल तो है ही। फिलहाल तो आपकी इंडस्ट्री के लिए इमीडिएट ग्रोथ इज नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज आज के जमाने में ज्वेलरी के बारे में तो कोई अभी सोचेंगे नहीं, दैट इज अ फैक्ट। सोशल डिस्टेंसिंग है, आपके फैक्ट्री के अंदर नजदीक तो किसी को बिठा नहीं पाएंगे, 2 गज दूरी तो रखना ही पड़ेगा। 2 गज दूरी रखना है तो उस हिसाब से आपका वर्क स्टेशन भी होगा, तो डेस्क चेंज हो जाएंगे, फिर बैठने का जो पहले जो सेटअप था वो सेटअप अभी चेंज हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आदमी भी कम हो गए, दूर जगह भी चाहिए रहता है, तो आपका वर्क कंटेंट्स में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाएगा। इस सीखने के चांसेस है कि नए बंदे को आपको रिक्रूट करना पड़ेगा। व्हाटएवर, ऑल दिस आर सम ऑफ द थिंग। नए डिमांड्स भी है, तो कैसे करेंगे? बिकॉज वी कैन नॉट कीप आवर ऑर्गेनाइजेशन शट फॉर लॉन्ग, एट द सेम टाइम हमको नफो जोएज, हमको पैसा भी बनाना रहता है। एट द एंड ऑफ द डे वी आर इन द बिजनेस टू मेक मनी and fast. How can I make money faster also? That is also very important. So how can I make all of these happen at a very fast time? So दोबारा सोचने की क्या जरूरत है? There is no need of reinventing this wheel. 1945 में some 60-80 years ago somebody has already done it. अमेरिका ने करके दिखाया है, उसको पीपल ने फॉलो करके दूसरे देशों ने भी कर दिखाया है। So why can't we simply follow that? So आपके चैलेंजेस, जैसे कि मैं भी पहले भी बता रहा था, वही चैलेंजेस होगा।
आपके पास मैन पावर है कि नहीं है? अगर है तो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से आपको काम कराना पड़ेगा। जब सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से कर रहे हैं तो आपके काम इधर-उधर थोड़ा मरोड़ना पड़ेगा, तो नए-नए स्किल का दिखाना पड़ेगा। एक ही बंदे को 2-3 स्किल्स सिखाने पड़ेंगे। नहीं है, अगर मैन पावर नहीं है तो नया रिक्रूटमेंट देना पड़ेगा, उनको भी स्किल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। टाइम इज़ मनी। वक़्त है, वक़्त रुक जा, थम जा, ठहर जा, वापस ज़रा दौड़ पीछे, कभी जाने वाला नहीं है। सो टाइम इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। वक़्त के हिसाब से काम करना पड़ेगा। डू वी हैव ऑल ऑफ दीस? कैसे करूँगा मैं? कितनी जल्दी मैं अपने आदमी लोगों को ट्रेन करूँगा? दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज़ सिंपल। स्किल, हम लोग या तो आप बिल्ड स्किल बोलिए या हम कहते हैं कि उसको डी स्किल बोलते हैं। स्किल करके कोई चीज़ है ही नहीं है। आपने भी महाभारत में भी सुना ही होगा, जब द्रोण ने अर्जुन को सिखाया, बाकी लोगों को सिखाया, मगर विदाउट टीचिंग एकलव्य ने भी सीखा ही था। किसी ने उनको सिखाया नहीं है, एकलव्य ने अपने आप सीखा था। हाउ डिड ही गेट दैट स्किल? स्किल है ना, बाय डूइंग इट रिपीटेडली, प्रैक्टिस करने से आता है। आप यकीन मानिए, वी आर ऑल अडल्ट्स नाउ, वी आर ऑल अडल्ट्स। हम लोगों को कोई लेक्चर बाजी सुन के कभी सीखते नहीं है। हम लोग कोई क्लास अटेंड करके कोई सीखता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, गलती करके अपनी गलतियों से सीखते हैं। एक चीज करते हैं, वो करते बाय, वी आर लर्निंग बाय डूइंग इट। वी आर करने से सीखते हैं। करने से क्या होता है, गलतियां करते हैं और गलतियों से सीखते हैं। आप लोगों ने सब वीडियो गेम्स खेला रहेगा। मोस्ट ऑफ यू माइट हैव प्लेड टेंपल रन और सबवे सर्फ। पहली दफा जब आपने खेला, कितने दूर गए होंगे, पर जब बार बार आप खेलना शुरू कर दिया, तो आपने कितना जल्दी कितने दूर चले गए थे। आपका मकसद भूल गए, ये आइडल लेना करके। अभी आपका मकसद है कितना कॉइन्स में लूं, कितने दूर जाऊं, यही अपना रह जाता है। लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट। वी आर लर्निंग बाई डूइंग। गलती हमारी एजुकेशन सिस्टम में ऐसा है, स्कूल्स में आप अगर गलती करोगे तो यू आर अ वीक स्टूडेंट। जो गलती नहीं करता है वो अच्छा है, जो गलती नहीं करता है ना, वो कभी सीखता नहीं है। जो गलती करता है वही सीखता है। लाइफ इज टीचिंग अस अ लेसन। एक्सपीरियंस वहां से मिलता है। किसी ने पूछा था, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? दैट बिजनेस मैग्नेट सेड, आई टुक राइट डिसीजंस एट राइट टाइम। उसने कहा, अच्छा, सो हाउ डिड यू टेक राइट डिसीजंस राइट टाइम? इट कम्स बाय एक्सपीरियंस। उसने कहा, अच्छा, ये एक्सपीरियंस आपको कैसे मिला? देन ही सेड, आई टुक सम रॉन्ग डिसीजंस। मतलब तो एयर इज ह्यूमन। कभी कभी गलत डिसीजन हम ले लेते हैं, मगर उस गलत डिसीजन से हम कुछ सीखना चाहिए हमें। अगर हम सीखेंगे नहीं तो बार बार वही गलतियां दोहराएंगे। when we keep repeating our mistakes, we become a master in making mistakes. So practice doesn't make anybody perfect. Practicing with correction makes you perfect. प्रैक्टिसिंग विथ करेक्शन कब होगा? जब हम अपने गलतियों से सीखेंगे। वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, तभी आप करेक्ट कर पाएंगे। आपने देखा होगा, म्यूजिशियंस को रियाज करते हैं, 8 घंटे रियाज। रियाज मतलब एक ही चीज को बार बार करते हैं क्या? नहीं, हर दिन जब नए कुछ करने के लिए सोचते हैं, कल मैं ऐसे किया था, आज मैं ऐसे ट्राई करूंगा। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ प्रैक्टिस। ऐसे स्किल हम उनको देंगे, या हम क्या करेंगे, उनको स्किल चीज को ही निकाल देंगे। ऐसा इसको ओपन बुक बना देंगे कि इसमें कुछ छुपा ही नहीं है। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड एज छुपा रुस्तम। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ। सो कैसे डेवलप करना है? दिस इज द मेथोडोलॉजी, दैट इज व्हाट वी से। कोई भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो, यू कैन ऑलवेज ट्रेन। सी लीडर, जो भी लीडर कहते हैं ना, मैं with the permission of my wife, I say I am the leader of my family. When I say I am the leader, so everybody, most of them, जिसने भी शादी की होगी, वो अपने फैमिली का लीडर है। मतलब वो अपना परिवार चला सकता है, खुद का डिसीजंस ले सकता है, तो अपने काम में क्यों नहीं कर सकता है? सो लीडर का 3 प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीडर का, लीड बाय एग्जाम्पल। वो खाली बोलने के लिए नहीं है, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं। He has to lead by example। वो खुद, क्योंकि जैसे कि हम पेरेंटिंग करते हैं ना, बच्चों को हम क्या बोलते हैं, कल से झूठ नहीं बोलना,
और जब बॉस का फोन आ जाता है तो बच्चे को ही बोलने का, पापा घर पे नहीं है, मोबाइल भूल के चले गए, ऐसा भूल जाना। तो बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है। कल ही जो पापा कह रहे थे कि झूठ नहीं बोलना, आज बोल रहे हैं कि हाउ टू टेल। कभी कभी झूठ भी बोल सकता है। बच्चे सीखते हैं, हमको देख के सीखते हैं। दे डोंट लर्न टू लिसनिंग, हमको देखते हैं। से लीडर्स हैव टू लीड बाय एग्जांपल। दूसरी चीज है, इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लीडर्स इज लीडर्स हैव टू क्रिएट न्यू बिहेवियर्स। जो ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग बोलते हैं ना कल्चर एक डेवलप करना है, कल्चर डेवलप करना है। क्या कल्चर है? इंडिया का कल्चर क्या है? कोने को देखा तो थूकने का कल्चर है। बड़ों को आदर करना कल्चर है हमारा। कल्चर इज कलेक्टिव हैबिट्स। हम सबका इंडिविजुअल का एक हैबिट है। जब हम लोग समूह में आ जाते हैं, व्हेन वी हैव दिस कलेक्टिव हैबिट्स, उसको हम कल्चर कहते हैं। तो कंपनी में एक कल्चर कैसे क्रिएट करेंगे? अपॉइंटमेंट ऑर्डर के साथ साथ कल्चर करके कोई चीज देंगे क्या? चलो आज से तुम ये कल्चर पहन के आना, हमारा कंपनी का ये कल्चर है। नहीं हो सकता है। कल्चर हैबिट, आदतों से बनती है। आदत कैसे बन जाता है? आदत थिंकिंग, द वे वी थिंक, द वे वी बिहेव। अगर बिहेवियर को चेंज करना है ना, आपको रूटीन को चेंज करना पड़ेगा। आपका आदत है, क्या है? नाखून चबाना आदत है, तो ये नाखून चबाने का आदत से छुड़ाना भी पड़ेगा। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। ये अच्छे बुरे सब्जेक्टिव रहता है, बट आदत आदत होता है। सेम वे कंपनी में एक कल्चर आपको अगर क्रिएट करना है, तो कंपनी का रूटीन्स को चेंज करो। ये जो रूटीन है, जो बिहेवियर को बदलते हैं, और ये बिहेवियर हैबिट को बनाते हैं, और वो हैबिट अपना कल्चर बन जाता है। सो आप अपने लीडर का तीसरा जो इम्पोर्टेंट रोल है, लीडर्स एज कोचेस। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा क्या हो जाता है, जो बंदा अच्छा काम करता है ना, उसको हम मैनेजर या सुपरवाइजर बना देते हैं। Actually, to become a manager or to become a supervisor requires different set of competencies. काम करने के लिए skills लगता है, काम करवाने के लिए competencies लगता है. It is not necessary that somebody is very good at working can be good at being a manager or a leader or a supervisor also. आप सब लोग फुटबॉल तो फॉलो करते होंगे, डिएगो मैराडोना को जानते होंगे, वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर, बट अ पैथेटिक कोच, जिसकी वजह से अर्जेंटीना का फुटबॉल टीम खराब हो गई थी। वेरी ग्रेट प्लेयर बट पैथेटिक कोच। क्रिकेट का अगर लेंगे, बॉब वुलमर करके एक बकवास प्लेयर था। He never crossed 30 runs when he visited India, but he was a very great coach. So being a coach is different, being a good worker is different. आपका लीडर जो ऐसा होना चाहिए, जो अपने बंदे लोगों को सिखा के उनको एक्सपर्ट्स बनाना चाहिए। दैट इज व्हाट वी हैव। हमारे मैनेजर्स, हमारे लीडर्स अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स है, पीयर्स है, उनको एजुकेट करके उनको एक्सपर्ट्स बनाना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ। व्हेन आई से टीचिंग, डोंट सिंपली टेक इनटू दिस, क्योंकि नॉलेज रिटेंशन जो बोलते हैं ना, मतलब पढ़ाई देने के बाद एक ज्ञान कितने दूर रहता है। आज आप लोग दोपहर को बैठे हो, कोई लोग खा के बैठे हैं, कोई लोग खाए बगैर बैठे हैं। दोपहर को 2 बजे बैठना इज मोस्ट टफेस्ट टास्क, बट स्टिल आफ्टर लिसनिंग टू दिस 90 मिनट सेशन, अगर 3 महीने के बाद कोई आपको पूछेगा कि इसमें से आपको क्या दिमाग में कुछ रहा है क्या, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज इफ यू लिसन टू ए लेक्चर, hardly if I ask you about this lecture, next week का माइंड स्पीक का जो सेशन के पहले 15 मिनट अगर हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, पिछले हफ्ते उन्होंने क्या, गोपाल ने क्या बोला था याद है? अरे किसको याद रहेगा? 5%, 5% of whatever I told you might have been, if you are really very good. अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो भी 10% नॉलेज ही आपको रिटेंशन में रहेगा, बाकी सब आप भूल जाएंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज टुडे वी आर ऑल बम्बार्डेड विथ इंफॉर्मेशन। व्हाट्सएप हो या फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ ना कुछ तो दिमाग में बम्बार्डिंग होता रहता है। इतने सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं, प्रोसेस करना डिफिकल्ट हो जाता है।
नाउअडेज न्यूज़पेपर भी 20-20 पन्नों का आते हैं, जबकि 12 पन्ने का आता था, वो उसको पढ़ना मुश्किल होता था। इतनी इंफॉर्मेशन रहते हैं। अगर मैं आपको कोई वीडियो दिखाऊं, कोई छोटा मोटा क्लिप दिखा देता हूं, जैसे कि व्हाट्सएप में आप देखते हो, थोड़ा बहुत याद रहता है। अगर आपको सामने से कुछ कर दिखाऊं, यस, क्योंकि आपने उसको देखा है, ये होते हुए देखा है, इसको करते हुए देखा है, तो दिमाग में थोड़ा रजिस्टर। इन सबको हम कहते हैं पैसिव टीचिंग मेथोडोलॉजीज। मोस्ट ऑफ द टाइम मेनी ऑफ द इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। कोई नया बंदा भी आ गया ना, सुपरवाइजर उनको डेमोन्स्ट्रेट करता है, बस ऐसा ऐसा करना है भैया, बस। टेलिंग एंड शोइंग इज नॉट टीचिंग। टीचिंग इज समथिंग बियॉन्ड दैट। खाली बताने से, खाली दिखाने से अगर कोई सीख जाता है तो बहुत कुछ हो जाता है। हमारे गुरुकुल सिस्टम में ऐसा नहीं था, कभी कोई बताता नहीं था, कोई दिखाता नहीं था। You have to learn by yourself, learn by doing, learn by doing. That is what why musicians take so much of time, but whenever they learn, they become so experts because they learn by doing. Why athletes एक फल के लिए, वो ओलंपिक के लिए 4 साल वो लोग क्रिएट अपने आप को प्रैक्टिस करते हैं। They keep learning by doing every day. उनके लिए कोई रेस्ट नहीं रहता है। सचिन तेंदुलकर भले वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन हो, उनके लिए भी एक कोच रहता ही है ना, क्योंकि कोच इज नॉट द वन हु इज गोइंग टू टेल यू हाउ टू डू ए थिंग। कैसे करना है वो नहीं सिखाता है कोच। कोच क्या करता है, आपकी खामियों को देखता है, वो बार बार आपको याद दिलाता है कि ये इसको करेक्ट करना पड़ेगा, तुम्हारा अपोनेंट का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तुम्हें ये इसको हैंडल करना पड़ेगा। दीज आर द थिंग्स ए कोच ऑलवेज डज। सेम वे आप एक कोच की तरह अपने पीयर्स को बढ़ावा देना चाहिए, not by telling him what to do or how to do, just giving him only inputs. हमेशा ये कहते हैं कि एक अच्छा गुरु वो होता है जो अपने बंदे लोगों को प्यास जगाता है। A teacher is not supposed to provide a cup of water. खाली प्यास जगाओ, make him thirsty, पानी वो खुद ढूंढ ले। ऐसे बंदे बहुत बढ़िया सीखते हैं। डिस्कशन करो ग्रुप डिस्कशन में, तभी क्या हो जाता है, व्हेन आइडियाज, आप एक आइडिया देंगे, मैं एक आइडिया दूंगा, मिलके 2 आइडिया बन जाएगा। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज इन डिस्कशंस। 50% याद रहता है। जब आप खुद करोगे तो 75%, अभी भी 100% नहीं मिलता आपको। जब आप दूसरों को पढ़ाओगे तभी भी आपको पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। 10% तो आप कहीं ना कहीं भूल ही जाओगे। हमारा कंप्यूटर मेमोरी नहीं है। As I said, we are all bombarded with information. So, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं पार्टिसिपेटरी टीचिंग मेथोडोलॉजी। मैं हमेशा कहता हूँ एक 80-20 करके, 80-20 प्रिंसिपल। हमारे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव में 80-20 बोला तो पैरेटो एनालिसिस बोलते हैं। इटली में एक इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम विल्फ्रेड पैरेटो था। He said that 80% of a country's property lies with 20% of the citizen. मतलब एक देश का 80% जायदाद 20% नागरिकों के पास ही है। That is the 80-20 principle he created, over which people started working in. मैं ट्रेनिंग में भी एक 80-20 बोलूंगा। 80% of whatever I share in this lecture will be forgotten in next 20 minutes. That is for sure. क्योंकि we are all adults, we don't listen nowadays. अटेंशन स्पैन इतना कम हो जाता है ना, बिकॉज हम लोग आजकल समाचार भी सुनते नहीं है, समाचार भी देखते हैं। कभी समाचार सुने क्या आप? वो जमाना गया, ऑल इंडिया रेडियो में बैठ के दिन में 15 मिनट का ही आता था, फिर भी वी यूज्ड टू ग्लू कमेंट्री सुनते थे। आज सब कुछ देखते हैं। इंफॉर्मेशन इज हार्डली टेकन थ्रू ईयर्स नाउअडेज। वो सुनने का आदत चला गया तो अटेंशन पे करने का आदत चली जाती है। इसीलिए सुनना डिफिकल्टी है, दैट टू दोपहर को सुनना और भी डिफिकल्टी है। तो इंफॉर्मेशन क्या है, TWI स्टार्ट हुआ था समवेयर बिटवीन 40 to 45 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ये सब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। ट्रेनिंग कैसे करना है
ये सबको जगाया था, खास करके इंडस्ट्री में ट्रेनिंग। इसमें क्या करते हैं, 5 दिन ही ट्रेनिंग देते हैं और प्रतिदिन 2 घंटे का ही ट्रेनिंग देते हैं। मतलब कुल मिलके 10 घंटा ट्रेनिंग, दैट्स इट। फ्रॉम द 11th डे द गाय हैज टू वर्क बाय हिमसेल्फ। और इतना इफेक्टिव ट्रेनिंग है, यू जस्ट कांट बिलीव इट। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, एसओपी दे दिया भाई इसको पढ़ ले और तुम अपने आप कर ले, ऐसा भी नहीं है। दिस इज समथिंग डिफरेंट। वो क्या डिफरेंट है अभी मैं बताऊंगा आपको। ये इतना सक्सेसफुल क्यों था? क्योंकि एक कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बहुत सिंपल था। प्लीज रिमेंबर, सिंपल बट नॉट इजी। इट इज सिंपल, सरल था बट नॉट इजी। आसान नहीं है, सरल है, आसान नहीं है। इसमें क्लासरूम में कोई बैठा के स्लाइड वगैरह बता के अंग्रेजी कोई झाड़ता नहीं है। इट इज वेरी सिंपल, ऑन जॉब ट्रेनिंग है। बोलना बहुत कम रहता है इसमें। लर्निंग बाय डूइंग, करो तभी तो सीखोगे सब कुछ। जैसे कि योगा, आप में से साइकिलिंग जानते होंगे, कोई लोग स्विमिंग जानते होंगे। जो भी स्विमिंग और साइकिलिंग जानते हैं, कौन सा बुक पढ़ के सीखा है आपने? खुद करके ही तो सीखे है ना। तैरने के लिए पानी में कूदना पड़ता है। सेम वे यहाँ पे काम करना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ टू लर्न। इसीलिए, और इसका जो है ना, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं ना, समथिंग सिमिलर टू दैट। एक बंदा 3 बंदे को सिखा सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे स्किलिंग को डी स्किल कर देते हैं, इतना आसान टुकड़ों में बना देते हैं कि कोई भी सिखा सकता है इसको। And then one guy teaches 3 people, 3 guy teaches more 3 people। जैसे कि अभी ये कोरोना फैलता है, वैसे ज्ञान फैलेगा आपको इसमें TWI में। And it becomes more easy. You don't have to spend too many time on training your people in hotel rooms or classrooms. काम पे, जहाँ पे काम, कर्म भूमि में, वहीं पे होगा सब ट्रेनिंग, वहीं पे फैलेगा ये। That is the biggest advantage of this training within industry. इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब इसका मकसद क्या था? फर्स्ट थिंग इज, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन है, जो तनाव है, उसको एकदम सरल बनाना है। पॉजिटिव वाइब्रेशंस दोनों के बीच में होनी चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू। whether you like it or not, whether you accept it or not, somewhere there is a prejudice between both of these clans. इनको ऐसा लगता है कि ये मुझे बराबर पे नहीं कर रहा है, उनको ऐसा लगता है कि ये पे के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। दिस ट्रस्ट इज नॉट बिल्ट। जब ट्रस्ट बीच में, दोनों के बीच में जब एक्सेप्ट ये ट्रस्ट नहीं रहता है, then it becomes a difficult, the relationship building becomes very difficult. So TWA इसमें क्या, पहले रिलेशंस पे काम करता है। they are trying to resolve any conflict even before coming out. उसका एक साइंटिफिक अप्रोच रहता है। वो साइंटिफिक अप्रोच सिखाता है सुपरवाइजर को कि हाउ टू एंटिसिपेट अ कॉन्फ्लिक्ट एंड हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। न्यू पैराडाइम्स, पैराडाइम यानी कि माइंडसेट, सोचने की विचारधारा। हमारा जो विचारधारा है कुछ नए होने का। पैराडाइम का एग्जाम्पल कैसे बोले हम? एक बंदा ट्रेन में, मेट्रो ट्रेन पे चढ़ा अपने एक छोटे बच्चों के साथ। तीन बच्चे थे उनके साथ ट्रेन में। ट्रेन एकदम शांत वातावरण था, संडे आफ्टरनून टाइम। सो ट्रेन वाज गोइंग, वेरी वेरी फ्यू पीपल वेयर इन द कोच। कोई अखबार पढ़ रहे हैं, कोई गाने सुन रहे हैं। और ये 3 बच्चे जैसे ट्रेन की पेटी में घुसे, इतने हंगामा करने लगे कि इधर से उधर कूदना, उछलना, चिल्लाना, दौड़ना, हंसना। People were literally getting irritated. तो उनमें से एक बंदे बोला, बॉस व्हाई डोंट यू टेल योर किड्स टू बिहेव प्रॉपर्ली? बाहर जैसे बिहेव करना है थोड़ा बहुत तो सिखाओ उनको। ये बंदा बोला कि यस, आई विश आई वेयर इन अ पोजीशन टू टेल दैट, मगर मैं अभी अभी श्मशान घाट से वापस आ रहे हैं, इन बच्चों की माँ मर गई है, आई एम जस्ट लेटिंग लूज देम टू। नाउ वातावरण वही है, सब्जेक्ट्स आर द सेम, मगर
ये जो न्यूज के पहले उस बच्चों के बारे में उनका जो विचारधारा है वो टोटली अभी चेंज हो गया है। सब लोग अभी बच्चों के ऊपर तरस खाने लगे, अरे इतने यंग एज में माँ को खो गए, and then they started pitying these kids. This is what we call it as a paradigm shift. मतलब paradigm shift इमोशनल इसमें आधार पर होना है ऐसा नहीं है, वातावरण वही रहेगा, काम करने का जगह वही है, आदमी लोग वही है, काम भी वही है, मगर काम के प्रति मेरा जो विचारधारा है वो चेंज होगा। दैट इज व्हाट द लीडर इज सपोज टू डू। वो कैसे करेंगे हम अभी देखेंगे। सुपरवाइजर को क्या सिखाएंगे? हाउ टू एंगेज पीपल। नेचुरल टीम मतलब अपने आप जो जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो उनको हम लोग नेचुरल टीम कहते हैं। उनको सही तरीके से सिखाने का है और जल्दी भी सिखाने का है, वक्त बिगाड़ने का नहीं, टाइम पे। एंड देन स्टैंडर्डाइज्ड वर्क कहते हैं, जो भी काम करेंगे सीक्वेंस में एक ही तरीके से, जस्ट लाइक रिपीटेटिव रिपीटेटिव रिपीटेटिव, कैसे करना का है वो सिखाएं। और when we say repetitive work, ऐसा नहीं है कि आज भी वही करेगा 3 साल बाद भी वही करेगा, कभी कभी ये स्लो भी हो जाएगा, नहीं, काम करते करते मेरे काम करने का जो ढंग है उसको कैसे मैं चेंज करूंगा, उसको कैसे मैं इम्प्रूव करूंगा। whenever ऐसे चेंज परिवर्तन हमेशा भलाई के लिए होता है। परिवर्तन जो भलाई के लिए होता है उसको हम प्रगति कहते हैं या उन्नति कहते हैं, और जापानी लैंग्वेज में उसको काइजन कहते हैं। परिवर्तन जब बुराई के लिए होता है उसको बिगड़ना बोलते हैं। हम में से कोई बिगड़ना वाला परिवर्तन कभी चाहते नहीं है। Nobody wishes deterioration. We all want improvement. We all want development. तो एक लीडर अपने बंदे लोगों से काम कैसे और करेगी, बिकॉज ये दिल मांगे मोर। सेठ लोगों को भी दिल मांगे मोर, काम करने वाले को भी दिल मांगे मोर। एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी वांट्स मोर मनी, राइट? सो मोर आउटपुट कैसे दूं? अगर मुझे मोर मनी चाहिए, मुझे मोर आउटपुट देना चाहिए। मोर आउटपुट देना चाहिए तो वही कैसे करूंगा? कल जैसे किया वैसे ही आज भी करूंगा तो मुझे डिफरेंट आउटपुट तो नहीं मिलने वाला है। सो इफ आई हैव टू गेट अ डिफरेंट आउटपुट, आई हैव टू ट्राई समथिंग टू डू डिफरेंटली, एंड हाउ टू डू इट डिफरेंटली ये सिखाएगा मेरा सुपरवाइजर। अगर काम करते करते मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गया है, उस प्रॉब्लम को जड़ से निकाल, उखाड़ फेंकना है, जड़ से, रूट। कभी कभी मैं हमेशा कहता हूँ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन एनी इंडस्ट्री इज एज ओल्ड एज द इंडस्ट्री। जब से इंडस्ट्री शुरू हुआ तब से वो प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि हम उस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ते नहीं, जड़ से निकालते नहीं है, इसीलिए वो रिपीट होता रहता है। हम में से भी कई लोगों ने एक्सरसाइज किया रहेगा, डाइटिंग किया रहेगा, कुछ दिन के बाद वापस वही मोटापन आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसको बरकरार नहीं रहते हैं। एनी इम्प्रूवमेंट्स वी मेक, वी आर नॉट सस्टेनिंग इट। और ये लीडर क्या करेगा यहाँ पे? वो सस्टेनेंस के ऊपर काम कराएगा। नॉट ओनली दैट, सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सेफ्टी को इतना मायने नहीं देते हैं। दैट इज द रीजन कोविड के इतने लॉकडाउन, इतने इसके बाद भी हम देख सकते हैं कि बाहर थूकने का जो आदत है हमको छोड़ते नहीं। गणपति पापा को दूसरा सर मिल गया है इसीलिए हम हेलमेट पहनते नहीं है। गाड़ी में बेल्ट तभी पहनते हैं जब कोई पुलिस वाले को देखते हैं, बिकॉज वी आर नॉट केयर्ड अबाउट सेफ्टी। भले वो घर पे हो या सड़क पे हो या कोई फैक्ट्री पे हो या इंडस्ट्री काम करने की जगह पे, सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सेफ्टी एम्प्लॉई मोरल को बूस्ट करता है। जब उनका मोरल बूस्ट हो जाता है आउटपुट अपने आप आ जाता है। नाउ ये सब तो अभी हो गया इंट्रोडक्शन। एक सुपरवाइजर और एक लीडर का एक 5 जरूरतें रहता है, 5 नीड्स टू बी, कॉम्पिटेंसीज भी बोल सकते हैं हम उसको। आप जब भी इंटरव्यू लेते हैं ये 5 कॉम्पिटेंसीज के ऊपर आपने कभी गौर किया है क्या? जरा देखिए वो 5 क्या होता है। एक तो है काम का जानकारी, व्हाट वी कॉल इट एज अ नॉलेज ऑफ वर्क। नॉलेज ऑफ वर्क का मतलब क्या है? कौन सा काम कब करना चाहिए, किस सीक्वेंस में करना चाहिए, कितने टाइम के अंदर करना चाहिए,
किसको करना चाहिए? ऑल दीज आर कॉल्ड नॉलेज ऑफ वर्क। नॉलेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इनपुट मटेरियल कहाँ से आएगा, आउटपुट मटेरियल कहाँ से जाएगा, कौन लाके देगा, कब लाके देगा, कितने फ्रीक्वेंसी में लाके देगा, कैसे इसका पैक होगा, कहाँ पे जाएगा, who will make the GRN, all these things, ये इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन दो के ऊपर ही ज्यादातर फोकस करते हैं, बट देयर इज समथिंग डिफरेंट ऑल्सो। हम कहते हैं स्किल इन ट्रेनिंग। अगर सुपरवाइजर को किसी को सिखाने का वो जो नुआंसेस है, स्किल है, वो अगर नहीं आया तो वो सुपरवाइजर नहीं बन सकता है। उसके लिए हम कहते हैं जॉब इंस्ट्रक्शन, मतलब काम को कैसे किया जाए, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ जॉब इंस्ट्रक्शन, वो सिखाते हैं। और दूसरा स्किल इन मेंटरिंग। मेंटरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग। मेंटरिंग क्या करते हैं? एक बंदे को एज अ पर्सन हम लोग उसको इम्प्रूव करते हैं, डेवलप करते हैं। बंदे लोगों को हम ये कहते हैं कि आप आज ऐसे कर रहे हो, टुडे यू आर प्रोड्यूसिंग 30 प्रोडक्ट्स पर आवर, नाउ व्हेन विल यू गो फ्रॉम 30 to 35? खाली वी आर नॉट गोइंग टू टीच हिम कैसे करना है, बट खाली उनको सवाल ऐसे करेंगे जिसका जवाब ढूंढते ढूंढते वो खुद 30 से 35 तक चला जाएगा। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज स्किल इन मेंटेन। बिकॉज कभी कभी क्या हो जाता है, ऑपरेटर हिट अक्रॉस ए नॉलेज थ्रेशहोल्ड, हम लोग इसको नॉलेज थ्रेशहोल्ड कहते हैं। इन द सेंस वो एक डेड एंड पे आ जाता है, इसके आगे वो सोच भी नहीं पाता है क्या करना, कैसे करना, वो सोच नहीं पाता है। उस टाइम पे सुपरवाइजर को पिच करना है, ऐसे सवाल करना है जिसके जवाब में वो जो जहाँ पे हटका है उसका क्लूज मिल जाए, उसको हम लोग जॉब मेथड्स कहते हैं। और तीसरा है जॉब रिलेशंस, मतलब लीड करना है। लीड करने का मतलब क्या है? अपने बंदे अपनी टीम में आपसी झगड़ा कुछ होना नहीं चाहिए, एक दूसरे को ट्रस्ट करनी चाहिए, परस्पर भरोसा, अपनी टीम पर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि हाँ मैं ये काम मेरे टीम को देगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। कभी कभी टीम में ऐसे भी कोई लोग होते हैं कि बैठे बैठे देखते रहते हैं, कुछ करते नहीं, बट स्टिल दे आर आल्सो कॉल्ड एज टीम मेंबर्स। Everybody has got a clear role defined and depicted in this team. ये तीनों जो करेगा वो बड़ा सा सुपरवाइजर बन जाएगा। एंड ये TWI इन तीनों के ऊपर काम करता है। There are 3 types of J, what we call it as job instruction, job method, मतलब ये कैसे करने का है, दूसरा का कैसे उसको इम्प्रूव करने का है, और तीसरा कैसे लीड करने का। ये तीनों बताते हैं। नाउ आप काम, आपके काम में प्रॉब्लम क्यों आता है? एक जैसा दूसरा ये नहीं रहता, बिकॉज वेन एवर देर इज ए वेरिएशन, काम करने के की तरीका में जब रिपीटेबिलिटी नहीं रहता है, जब रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं रहता है, देन वी विल हैव प्रॉब्लम्स। हम लोग हमेशा कहते हैं कोई भी समस्या, हाउ डू वी डिफाइन समस्या, प्रॉब्लम्स को कैसे डिफाइन करते हैं? एनीथिंग दैट इज डिविएटिंग फ्रॉम द एक्सपेक्टेशंस इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम्स। हमारे जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था यार, ये कोविड-19 ना मई महीने में बंद हो जाना चाहिए था, उसके बाद एकदम खुल जाना चाहिए था। नॉट हैज हैपेंड, प्रॉब्लम है। ये एक्सपेक्टेशंस को स्टैंडर्ड, मुझे 20 मिनट में पिंपले सौदागर से लेके चाकन तक पहुंच जाना चाहिए, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन। जब मैं गाड़ी निकल के जाता हूँ इतना ट्रैफिक हो जाता है, वो 20 मिनट 2 घंटे हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स, anything that is deviating from expectation is called as a problem। मगर हमारे इंडस्ट्री में हमारे काम करने की जगह पे एक्सपेक्टेशंस को नहीं बोल सकते हैं, बट व्हाट वी कैन क्रिएट इज, मैं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एक स्टैंडर्ड बनाता हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है? इस कंपनी को इतना मुनाफा करना चाहिए, ये मुनाफा अगर मुझे करना है तो ये काम करना चाहिए, इतना बेचना चाहिए, इतना आउटपुट आना चाहिए, इतना डिफेक्ट कम होना चाहिए। ऑल दिस थिंग्स आई लिस्ट इट आउट एंड देन आई क्रिएट अ स्टैंडर्ड फॉर इट। मगर उस स्टैंडर्ड में जो वेरिएशंस आ जाता है तभी प्रॉब्लम कहते हैं।
और वो स्टैंडर्ड है ना, 4 प्रकार के स्टैंडर्ड रहते हैं। 4 M's कहते हैं हम लोग, मैन, मेथड, मटीरियल एंड मशीन। आदमी चेंज हो गया, प्रॉब्लम आ जाता है। मेथड चेंज हो गया, प्रॉब्लम आ जाता है। मटीरियल चेंज हो गया, प्रॉब्लम आ जाता है। मशीन चेंज हो गया, प्रॉब्लम आ जाता है। आपकी प्रॉब्लम इन 4 M के बीच ही है, कहीं बाहर दुनिया में नहीं है। तो इन 4 M को जो भी वेरिएशंस आते हैं, जितना आप वेरिएशन को कम करेंगे, उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। स्टैंडर्डाइज का मतलब ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है। पहला सॉक्स, बाद में शूज। उल्टा नहीं पहन सकते हैं आप कभी भी। पहले सूप, बाद में खाना, उसके बाद ही डेजर्ट है। कोई भी डेजर्ट से शुरू करके सूप में खत्म नहीं करता है। एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन रहता है। जो भी करने का है उसका एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, स्टैंडर्ड सीक्वेंस है, ऑपरेटिंग सीक्वेंस बनाना है, तभी आपका स्टैंडर्ड है। वेरिएबिलिटी तभी आता है। वेरिएबिलिटी क्या करता है, आपका परफॉर्मेंस को अनस्टेबल कर देता है। हमारे कोविड में भी हम एक आज we are not able to come to a conclusion because our graph is highly unstable. वो W ग्राफ बहुत मिलता है आपको, किसी दिन ज्यादा, किसी दिन कम, किसी दिन ज्यादा, किसी दिन कम। ये अनस्टेबल परफॉर्मेंस जब आएगा, उसका प्रॉब्लम ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वेरिएशन को पहले कम करने के लिए आपको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से सबको सिखाना पड़ेगा। इस स्टैंडर्ड के माध्यम से आप काम करो। जब वो काम करते हैं तभी भी प्रॉब्लम आएंगे, तभी भी वेरिएशंस रहेगा, मगर ये वेरिएशंस इतना ज्यादा नहीं रहेगा, बहुत कम हो जाएंगे। जब वो बहुत कम हो जाते हैं, तब हम उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट की बातें करेंगे। बिकॉज ये है ना, एक जोन्स है। पहले जब भी बंदा एक कंपनी के अंदर आता है, वो एक पैनिक जोन में रहता है। मतलब वो डरा हुआ रहता है, क्या काम है, मुझसे होगा क्या, कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। और वो इतने पैनिक जोन में जब रहता है ना, जो भी उसको कुछ भी बोलेगा उस हिसाब से वो मरोड़ जाएगा। उसको डरा के भी रखते हैं कोई कोई सुपरवाइजर पहले दिन से। कोई कोई गलत गलत इंफॉर्मेशन देके उसको माइंडसेट को चेंज करके भी रखते हैं। He can be easily maneuvered when he is in a fear zone, क्योंकि वो जो कोई भी बोलेगा उसको सच मान के बैठेगा। पहला दिन है ना, तो स्लोली वो फियर जोन से लर्निंग जोन में आता है। लर्निंग जोन में जब सीखता है वो काम इतना करता है कि नींद में भी करने लगता है, तभी वो कंफर्ट जोन में आ जाता है। जब वो कंफर्ट जोन में आ जाता है ना, उसके बाद वो कोई इंप्रूवमेंट ही करता नहीं है। और उस समय में सुपरवाइजर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये बंदा कंफर्ट जोन में आ गया, अभी इससे आउटपुट ज्यादा मुझे खींचने के वक्त आ गया है। नाउ आई विल आस्क हिम दोस क्वेश्चंस, एकदम डिटेल में ऐसे सवाल करूंगा ना, ताकि उसका स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो जाएगा, उसका आउटपुट इंप्रूव होगा। इन सब करने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है। बट मोटिवेशन कभी बाहर से आता है क्या, कि दुकान में कभी मिलता है क्या, 5 किलो मोटिवेशन दे दे भैया, कभी नहीं होता है। मोटिवेशन अंदर से आना पड़ता है, किसी को भी अंदर से। बाहर से जो भी मोटिवेशन आता है ना, वो डर के मारे आता है। वो डर के मारे जो मोटिवेशन आता है ना, इट इज टेम्पररी, क्योंकि वो डर का जो सोर्स है, एज लॉन्ग एज द सोर्स ऑफ फियर इज प्रेजेंट, काम करेंगे। बॉस बैठे हैं कैबिन में, तब तक काम बढ़िया से होगा। मोमेंट बॉस थोड़े काम के लिए कहीं मीटिंग में चले जाते हैं, बंदा आराम करने लगता है, बिकॉज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज गॉन। So the motivation by fear is never going to help you. मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। वो तभी होगा जब पीपल का प्रॉब्लम्स को कोई सुनेगा और सॉल्व करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व इज इम्पोर्टेंट थिंग। एम्पैथी, हमको उनके जूते पर डाल के देखना चाहिए, हाउ दे आर लुकिंग एट इट। वी हैव टू मेक इट वेरी क्लियर, उनसे हम चाहते क्या है और उनका चाह क्या है, बोथ ऑफ दैट टू बी। सो ये जो 3 है, यहीं पे काम करते हैं हम। दिखता तो बहुत सिंपल है, बट इतना आसान भी नहीं है। JI इज जॉब इंस्ट्रक्शन, JM इज जॉब मेथड्स। क्या करते हैं, 4 स्टेप कहा मैंने शुरुआत में। पहला स्टेप क्या है, प्रिपेयर द वर्कर्स। जॉब इंस्ट्रक्शन में
पहला स्टेप है प्रिपेयर द वर्कर, अपनी कारीगरी को डेवलप प्रिपेयर करो। मैं उनको अगर ट्रेन करने वाला हूँ, आई हैव टू प्रिपेयर हिम। क्या प्रिपरेशन है? उनको ऑपरेशन प्रेजेंट करना पड़ेगा, कैसे करना है बताना पड़ेगा। जब आप बता रहे हैं ना, उनको सामने रख के मत बनाओ, आप उनको अपने पीछे खड़ा करो, क्योंकि जब सामने रहते हैं ना, नजरिया अलग है। हमारे पीछे जब रहेंगे, हम जैसे देखेंगे वैसे वो भी देखेगा। प्रेजेंटिंग द ऑपरेशन एंड देन उसको करने के लिए बोलना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अंदर उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। दे हैव टू डू, जैसे करता है। दीज आर द 4 स्टेप्स। एंड देन अभी मेथड्स है कैसे इंप्रूव करना है। ब्रेक डाउन द जॉब, जॉब को जो भी काम है उसको टुकड़ों में बांटो। मतलब दरवाजा, ओपन द डोर इज वेरी सिंपल, बट ओपन द डोर को कैसे? गेट अप फ्रॉम योर चेयर, walk 4 steps with your right hand palm, hold the knob, rotate the knob and then push the door। ऐसे जब बताते हैं it becomes more clear। हम लोग क्या करते हैं, हर एक जॉब को स्मॉल एलिमेंट्स में टुकड़े कर देते हैं, उसके बाद हर कोई एलिमेंट को सवाल करते हैं, ये जरूरी है क्या? गेट अप फ्रॉम द चेयर जरूरी है क्या? नहीं तो कौन जाकर दरवाजा खोलेगा भैया? चलो ठीक है, तो अगर जरूरी है तो इसको दूसरे कोई काम के साथ, we call it as eliminate, combine, rearrange, simplify। अगर जरूरी है तो ये कहाँ होना चाहिए, किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए, सीक्वेंस में कहाँ आना चाहिए, ये सब सवाल होगा। अगर जरूरी नहीं है तो इसको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, वो सवाल करेंगे। उसके बाद कहेगा नया तरीका अभी सोचो कैसे करोगे, सीक्वेंस को चेंज करोगे, इधर का उधर, उधर का इधर करके देखो, ट्राई आउट करो। अभी नया है, हर किसी को अपना अपना सुझाव को बेचना रहता है। और तीसरा है जॉब रिलेशंस। जॉब रिलेशंस में भी 4 है। फर्स्ट, गेट द फैक्ट्स। यहाँ पे डाटा नहीं होता है, डाटा कंप्यूटर से भी मिल जाएगा। फैक्ट को करने के लिए कर्मभूमि में जाना पड़ेगा, जहाँ पे काम हो रहा है उधर जाना पड़ेगा। ट्राई टू गेट द फैक्ट, क्योंकि जब आज क्या है, ब्लेमिंग कल्चर होता है। कुछ गड़बड़ हो गया ना, कौन था ऑपरेटर, यही सवाल करते हैं, क्या गड़बड़ है वो नहीं पूछते हैं। तो ब्लेमिंग कल्चर जब आ जाता है ना, सब लोग ट्राई टू पुश थिंग्स अंडर द कार्पेट, छुपाते हैं, सच नहीं बोलते हैं। और अफसोस की बात यह है कि मैनेजर लोग कभी अपने कैबिन से बाहर आते नहीं है, इसलिए वो लोग जो भी बोलते हैं उसको उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब तक आप फैक्ट्री में, मतलब जहाँ पे काम हो रहा है वहां पे जाएंगे नहीं, आपको फैक्ट्स मिलेगा नहीं। जब फैक्ट्स मिलेगा उसको आपको तोलना पड़ेगा। यू हैव टू इवैल्यूएट व्हाटएवर दे से इज राइट, इज इट हैपनिंग। जैसे कि कोई डिटेक्टिव, अपना प्रद्युम्न जैसा नहीं है, पर डिटेक्टिव जाता है वहां पे, फरकता है इसका मोटिव क्या था, क्या हुआ रहेगा, थियरी सेशन, ही हैज टू वे एंड डिसाइड इट। उसके आधार पर वो अपना एक्शन लेता है और उसके बाद उसके रिजल्ट्स चेक करता है। ये जॉब रिलेशंस हो गए हैं। नाउ क्या हो गया, जॉब इंस्ट्रक्शन इज ऑल अबाउट एजुकेटिंग पीपल। ये क्या है, बिहेवियरल है। अब मैं इसको 3H कहता हूँ, हैंड, हेड एंड हार्ट। जॉब मेथड क्या है, एम्पावरिंग। आप उनको बोलते हो मैं कुछ नया ट्राई करो, नए तरीके से बनाओ, मगर मुझे आउटपुट ज्यादा मिलना चाहिए। एम्पावर करते हो एंड देन एंगेज करते हो, व्हाट्स इन इट फॉर मी। हम लोग TQM बोलते हैं ना, मैं हमेशा ये TQM का यही एक्सप्लेनेशन, इट इज नॉट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM का मतलब है तेरे को क्या मिला, TQM मुझको क्या मिलता है। अरे यार कंपनी को तो मिलता है, मुझे क्या मिलता है। एवरीबडी इज वर्किंग फॉर दिल मांगे मोर। ये 3H जब एक लाइन पे अलाइन हो जाएगा ना, हेड, हार्ट एंड हैंड अगर एक लाइन पे अलाइन, तब आपका जो एम्प्लॉइज है उनका आउटपुट एकदम बढ़िया हो जाएगा। और ये 3 करने के लिए हमको एक जॉब इंस्ट्रक्शन क्या चीज है, इट्स अ स्टैंडर्ड वे ऑफ मेथोडोलॉजी। आप क्या कर रहे हो उसको एक्सप्लेन करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे SOP में क्या है, क्या करना है यही लिखा रहता है। कोई कोई जगह पे ये भी लिखा रहता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कैसे करना वो भी लिखा रहता है। मगर कोई ये नहीं बोलता है कि इसको क्यों करने का है।
दैट इज वेयर द डिफरेंस इज। जब एक बंदा ये समझ जाता है कि काम को क्यों करे, तो अपने आप से ये देखिए एक बंदा सिखाता है, उसके पीछे सब लोग खड़े होके देखते हैं। ऐसा नहीं कि सामने खड़ा रह के। जब भी आप किसी को सिखाते हो, अपने पीछे खड़ा रखना पड़ेगा। जब भी आप कुछ करते हो, डेमोन्स्ट्रेट करते हो, आप जिस नजर से उसको देखते हो, उसी नजर से अपने ट्रेनीज को भी दिखना चाहिए। उस हिसाब से आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसको कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ नाउ। हम लोग ये भी कहते हैं, अगर आपके ऑपरेटर ने कुछ सीखा नहीं है, इसका मतलब है आपका सुपरवाइजर ने सिखाया नहीं है। इसमें गलती एकलव्य का नहीं है, गलती द्रोण का है। अगर किसी ने नहीं सीखा तो वो स्टूडेंट का गलती नहीं है, टीचर की गलती है। टीचर को देखना चाहिए कि हर कोई सीखे कि नहीं सीखे। वो कैसे करेंगे, दैट इज व्हाट। हम लोग अभी कोविड का टाइम है, इसीलिए मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हाथ धोते हैं ना, ये हाथ धोने को कैसे हम लोग सिखाए। आप लोग हंसेंगे, यार हाथ धोने के लिए भी कोई सिखाता है क्या करके। देखिए हाथ धोने का कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैं आपको ऐसे टेक्स्ट में उनको दिखाता हूँ। यूज सोप वाटर, वॉश फॉर 20, ये SOP बन जाता है। ये रामायण महाभारत कोई पढ़ता है क्या आजकल? मैं आपको टाइम देता हूँ, 5 मिनट ले लीजिए, पढ़ लीजिए पूरा इसको। ये बोलता है कि सोप वाटर यूज करो, अल्कोहल सैनिटाइजर 60% से ज्यादा हो तो तभी यूज करो, टिश्यू को टच करो, मुंह पे मत रगड़ो, देन मोबाइल को मत ले जाओ। ये बहुत सारे दुनिया भर का देता है। और ये भी होता है, प्लान करो। बाहर अगर जाते हो लॉकडाउन के टाइम पे, यूज ओनली 1% शुड गो, 1 ड्रेस शुड बी यूज, 1 बैग, 1 वैलेट, 1 व्हीकल, 1 गो, सब कुछ है। ये सब कौन याद रखेगा भैया? जनरली SOPs ऐसे लिखे जाते हैं, राइट? आमतौर पे ऐसे ही सिखाया जाता है सब लोगों को। बट हमारे तरीके TW कैसे बताता है, ये अपने में सिखा। पहला बताता है हैंड वॉशिंग। क्यों? टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। मेरा हाथ धोने का मकसद क्या है? एक हर काम करने के लिए एक मकसद होता है, एक मोटिव रहता है। वो मोटिव को मैं बताता हूँ, प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो क्या क्या पार्ट्स है इसमें? मेरे पॉम्स है, मेरे फिंगर्स है, और फिंगर्स को जोड़ने वाला वेब है, और मेरा रिस्ट, ये पार्ट है। बट इसका टूल्स क्या क्या है? साबुन है, पानी है, सैनिटाइजर है, एक नल होनी चाहिए, अगर टिश्यू पेपर है तो टिश्यू पेपर, और एक ट्रैश बिन होनी चाहिए। ये सब पार्ट्स है। ये सब वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इन सब को अरेंज करने का काम है सुपरवाइजर का। अभी मैं पहला कहता हूँ इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है। इम्पोर्टेंट स्टेप हम लोग इसको कहते हैं इम्पोर्टेंट, मतलब एक काम को एक स्टेप से दूसरे स्टेप में ले जाने के लिए जो भी काम होता है उसको हम लोग इम्पोर्टेंट स्टेप कहते हैं। पहले क्या है, एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, काम को आगे भी ले जा सकता है, काम को छोड़ भी सकता है, उसको हम स्टेप कहते हैं। दूसरा है इंज्योर द वर्कर, अगर होगा तो सोचना, और काम को सरल कर सकता है क्या, वो भी सोचना। वेट योर हैंड्स, पहले गीला करो अपने हाथ को, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अभी सोप लगाओ, अभी दोनों हाथ को रब करो, अभी उंगलियों को करो और अंगूठे को करो, उंगलियों के बीच में करो। अब भी पानी के इधर हाथ दिखाओ। सब सोप को बाहर जाने के बाद अपने हाथ को ऐसे शेक करो अलग अलग, अभी सुखाओ। ये स्टेप्स हो गया, क्या करने का वो मैंने बता दिया, मगर ये क्यों करने का वो भी, मतलब कैसे करने का वो भी मुझे सिखाना पड़ेगा। इसमें ये क्या है, इजी कर देता है मेरे काम। दूसरा क्या है, अभी की पॉइंट्स में आ गए हम। वेट योर हैंड्स कहा था, क्यों? विदाउट सोप वेट फुल्ली ऑन सोप। सोप के बगैर खाली पानी से आपको गीला करना है। अभी सोप लगाओ, इतना सोप जितना चाहिए, जो जितनी पी सके उतनी ही डालना, ज्यादा हो गया तो लुढ़क जाता है, तो जितना सोप चाहिए उतना ही। अभी रब करना, कैसे रब करना? पॉम टू पॉम, पॉम टू बैक, ऐसा उल्टा आगे दोनों तरफ।
अभी रब फिंगर्स कैसे करने का है, इंटरलॉक फिंगर, मतलब उंगलियों को अपने आप इंटरलॉक करो ताकि ये अंदर एकदम जो भी छुपे हुए जगह को भी उधर जा सके। फिंगर टिप्स मतलब नाखून के बीच में जो जगह है उसको भी ऐसे रगड़ना चाहिए। अभी रिंस करो, ये सोप पूरा जो हाथ में है वो पूरा चले जाने चाहिए, तब तक उसको रिंस करना पड़ेगा। अभी सेपरेटली इसलिए करना है कि ताकि जो आपके हाथ में जितने भी पानी वो निकल जाए, ताकि कम टिश्यू पेपर आपको लगे। उसके बाद सुखाओ, मतलब टिश्यू पेपर से उसको वाइप करो, टॉवल नहीं यूज करो, क्योंकि एक बंदा भी क्या, आज कोविड का जमाना है, एक ही टॉवल अगर सब लोग करेंगे इन द कंपनी, घर पे कर सकते हैं इन द कंपनी। और जब भी आप टिश्यू पेपर को फेंकते हो ना कूड़ेदान में, इमीडिएटली ढक्कन से उसको बंद करा दो ताकि वो जो वायरस है बाहर ना चले जाए। ये की पॉइंट्स है, कैसे करने का ये बता दिया। अभी क्यों करने का वो भी बताना पड़ेगा हमें। अभी क्यों करने का वो बताए। विदाउट सोप क्यों करने का, तभी तो, नहीं तो पहले आप सोप लेंगे, बाद में नल खोलेंगे, सोप पानी के साथ चला जाएगा तो लादर नहीं आएगा, झाग नहीं आएगी, तो ये नहीं जाएगा। अप्लाई सोप इनफ टू कवर, अगर सोप कम हो गया तो ये जेम्स मरेंगे नहीं। ये गीला इसलिए करते हैं ताकि वो चिपके नहीं, सोप इसलिए करते हैं कि वो मरे। तो दोनों होना चाहिए, खाली वो किसा के नीचे गिर जाए मतलब नहीं है। रब योर हैंड्स क्यों करने का, एंटायर सरफेस में छुपे हुए जगह पर भी जाना चाहिए इसीलिए करने का, हिडन सरफेसेस में भी जाना चाहिए। रिंस इसलिए करने का क्योंकि कभी कभी जर्म्स इधर उधर छिपा रहेगा तो चला जाना चाहिए सोप के साथ, इसलिए पूरा रिंस करो। शेक इसलिए करने का ताकि टिश्यू पेपर 3-4 शीट नहीं यूज करें, एक ही शीट लिया उसको 4 फोल्ड किया, ऐसे किया तो बहुत कम पेपर, क्योंकि एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होनी चाहिए अपने को। अभी ड्राई करो, क्योंकि उसको खुला रखे हुए तो वो इन्फेक्शन हो जाए। तो एक ही काम को, हाथ धोने का है ये जो काम को हम लोग ऐसे टेम्पलेट्स में दिखाते हैं, तो ऐसे ही आपके काम में भी हर एक काम को अगर इस हाथ से उठाना है, लेफ्ट हैंड से ये काम करना है, राइट हैंड से ये काम करना, सब कुछ उसमें सिखाना पड़ेगा। दिस इज हाउ जॉब इंस्ट्रक्शन, नॉट ओनली दिस, ये करने के बाद उनको हर स्टेप में सिखाते हैं, बोलते हैं, करके दिखाते हैं, बाद में अपने ट्रेनी को उनको बोलते हैं कि तुम अभी बोलो, उसके बाद मैं बोलूंगा तुम करो, उसके बाद तुम बोलो मैं करूंगा, अब थर्ड टाइम आप ही बोलो आप ही करो, एंड देन स्टार्ट गिविंग यू वर्क एंड देन फॉलो अप कर। ये सब होता है ओनली 2 hours a day for 5 days। बहुत सिंपल मेथोडोलॉजी है, ये सब करने के बाद बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट इज जॉब मेथड्स। मेथड को कैसे चेंज करूंगा, प्लान टू हेल्प प्रोड्यूस, मतलब तरीका है, एक ही टाइप का काम करते रहेंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट करना है। क्या है ये हमने पहले भी देखा था, ये जो ब्रेक डाउन द जॉब पहले हमने जो किया था, हर एक स्टेप को आप सवाल करेंगे। अच्छा ठीक है, पहले ऐसा सवाल किया था मैंने, अभी ये 20 सेकेंड क्यों है, उससे कम हो सकता है क्या, कुछ फास्ट कर सकता हूँ क्या, मैं सोप में कुछ ला सकता हूँ क्या वेरिएशंस, और नल में कुछ वेरिएशंस ला सकता हूँ क्या। वी हैव टू थिंक ए न्यू मेथड क्वेश्चन, इसमें कौन से काम को मैं कंबाइन कर सकता हूँ, किस काम को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, किसको मैं रीअरेंज कर सकता हूँ, किसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। इसमें सिंप्लीफिकेशन कहाँ होगा, हाथ धोने के बाद नल को वापस टच करना पड़ता है मुझे, तो कैन आई हैव सम सॉर्ट ऑफ फोटो सेंसर, और कैन आई हैव सम फुट पेडल स्विच, जैसे कि मैं पैर से दबाया पानी आया और छोड़ दिया बंद हो गया, ये नया मेथड हो गया, उसमें टाइम भी सेविंग होगा। ये सब सोचने को मजबूर करता है ये जॉब मेथड्स, क्योंकि आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज करो। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्रिएटिविटी को यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम, क्योंकि हम जब भी किसी को एम्प्लॉय करते हैं ना, उनको दिमाग को यूज नहीं करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि मैं जो बोलता हूँ वही करो तुम। रोबो लेने की जगह पे हम लोग आदमी लिए हैं, अगर आदमी लिया तो उनके दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्योंकि मशीन में एक प्रॉब्लम क्या है, अगर आप मशीन 3 सेकेंड में आज एक काम किया ना, 30 साल के बाद भी वो 3 सेकेंड में ही काम करेगा। अगर बंदे लोगों को लिया, हमेशा इंप्रूवमेंट मिलता रहेगा। इसके बाद आता है जॉब रिलेशंस। जॉब रिलेशंस में इट्स ऑल अ साइंटिफिक मेथड ओवर रेजोल्यूशन। क्या करते हैं,
सबको कैसे सिखाते हैं, ये सब किसी को, these 4 steps we have seen, facts, when, desire, action, ये सब सबको एक स्किल मैट्रिक्स में रख के, सबको एक ही प्लेटफॉर्म में रख के, there will be not be any conflict between the employees. वो अपने a standard method to address all personal situations, that is what it's all about. ये जो 4 स्टेप का जो कंपैरिजन है, जॉब इंस्ट्रक्शन में पहले प्रिपेयर द वर्क करते हैं, whereas जॉब मेथड्स में जॉब को ब्रेक डाउन करते हैं, यहाँ पे फैक्ट्स करते हैं. ये क्या होता है, ये प्लान होता है. ऑब्जर्व द डेटा, रियलिटी, डिसाइड द प्रॉब्लम एंड देन डिफाइन. सेम वे काम कैसे करने का एक बार आप उनको बताते हो, सिखाते हो, दिखाते हो, सब कुछ करते हो. यहाँ पे आप कुछ करते नहीं हो, उनको सवाल करते हो. और यहाँ पे क्या होता है, आप इवैल्यूएट करते हो, एनालाइजिंग एंड काउंटर मेजर. एप्लीकेशन में क्या है, उनको करने देखते हो, आप देखते हो कि कैसे करता है, सही में करता है कि नहीं, सही आउटपुट आ रहा है कि नहीं करते. यहाँ पे आप उनको प्रोत्साहन देते हो नया मेथड बनाने के लिए. यहाँ पे आप एक्शन ले रहे हो, ट्राई इट आउट एंड सी इट. उसके बाद फॉलो, सीखा, कुछ किया, व्हाट इज द आउटपुट. 5 दिन, 15 दिन, फ्रॉम 10th डे ही विल बी ऑन हिज ओन. यहाँ पे न्यू मेथड को अप्लाई करो, रिसर्च को. सो दिस इज द, तो इसका बेनिफिट्स क्या है, ट्रेनिंग टाइम बहुत कम हो जाता है, आपका वेस्ट और डिफेक्ट्स बहुत कम हो जाता है, एक्सीडेंट्स बिल्कुल 0 हो जाता है, और जॉब सेटिस्फेक्शन आदमी को भी मिलता है. जॉब मेथड में क्या है, आपका कॉस्ट कम हो जाता है क्योंकि आपका आउटपुट बढ़ता है, नए तरीका का करने का ये हो जाता है, इम्प्रूव डिलीवरी, आपका वर्किंग प्रोग्रेस है वो भी कम हो जाएगा, फेटीग है, मोनोटोनस काम जो करते हैं वो कम हो जाएगा, and ease of operation that itself motivates people. Relations में क्या है, people are encouraged, empowered, मोरल बहुत बढ़ जाता है, आपका अट्रिशन रेट बहुत कम हो जाता है. पीपल विल नेवर, बिकॉज ये जो वातावरण है, ये जो माहौल है, आपको कहीं बाहर मिलेगा नहीं, इसलिए कोई आपको छोड़ के जाएगा भी नहीं. एंड दे ऑल नो कि मेरा कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में माय कंपनी इज इंटरेस्टेड, आई एम नॉट गोइंग आउट. दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस. ये खाली मैन्युफैक्चरिंग में ही होता है ऐसा नहीं है, कहीं भी कर सकते हैं. मैंने एक फॉर्म में, एग्रीकल्चरल फॉर्म में, एक ऑफिस में काम करती हुई लड़की को ले जाके हम लोगों ने हल जोता है. सिमिलरली फ्रॉम द ऑफिस वन अकाउंटेंट हैज स्टार्टेड डूइंग वेल्डिंग जॉब ऑन द वेल्डिंग. सिमिलरली एक बंदा जिसने कंप्यूटर देखा नहीं है, उसको हम लोगों ने ईआरपी एंट्री सिखा के, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ही स्टार्टेड डूइंग ईआरपी एंट्री. So all this can happen in 5 days. You won't believe. 5 days, 2 hours, rigorous training in this methodology, and people can do wonders. And this is really, हम लोगों ने, मैंने pharmaceutical में काम किया है, government industries में काम, government offices में काम किया है, prime minister office में we have implemented this, which has given us a very big benefit. Agricultural farms, it has given us a very big benefit. Where people are illiterate, जहाँ कोई पढ़ नहीं सकता है ना, वहाँ पे it has given us very big. And BMW Chennai, they have got very big advantage of this. This is a very, I have tried this in one of your jewelry industry somewhere in Jaipur. I do not want to name it. Of course, Ashok Minawala साहब को मैंने वो नाम बताया था. So it is, we have tried all of these. It is not that it cannot be possible. और हम जो 5S जो वगैरह कहते हैं, मगर एक कोविड का ज़माना है इसलिए मैं नया 5S आपको सिखाता हूँ. पहला सैनिटाइज कीजिए, सेफ्टी पीपीई, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, सेल्फ आइसोलेट कीजिए, डिसिप्लिन है. डिसिप्लिन मतलब चीखना नहीं सबके सामने, ऐसे बैठना नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट नहीं करना, जो भी पीपीई यूज किया उसको ढक्कन बांध के रख, मतलब ट्रैश बिन में ऐसे कैसे खुले नहीं छोड़ना, कहीं थूकना नहीं. And with this, I come to the end of the introduction to TWI. खाली मैंने आपको किनारे पे से दिखाया है, ये बहुत बड़ा समुंदर है, आप अंदर जब डाइव करोगे आपको मोती मिलेगा. And now it's questions time. You can unmute and you can start asking questions, और chat में भी आप उसको कर सकते हैं. Thank you, Mr. Gopalakrishnan ji. Welcome जी. I think
excellent presentation. Very simple Thank you. language. You tried to open up a lot of thought processes. You said a lot within in very simple language, very few words, and in a very soft, easy manner. And I think I enjoyed it tremendously. Okay. Thank you very much. I think Avinash ji, if you can see if there are any specific questions that people would like to know. And we would all have a few questions, of course. Yes, you are welcome. अविनाश जी आपका आवाज नहीं आ रहा है. हाँ, आवाज नहीं आ रहा है, सही. Can I stop sharing my screen? Yeah. Wow, that would be fine. Yeah. Yes. How can we teach empathy in the organization is the question. Yes, very important question. See, empathy is a feel, right? वो क्या है ऐसे सो गूंगा गुड़ खाई के कहा कौन मुख स्वाद. तो गूंगा जब गुड़ खाएगा तो कैसे स्वाद को एक्सप्लेन कर पाएगा. This is very difficult thing that we can say, but empathy has to be practiced out. So to practice it, as I say, leaders are always, one way is leading by example. If the leader starts showing empathy, people will start learning from doing it, and that is what we always say. So when during this JR, there is a set of questions that we have asking them. ये जो questions है, as you go by the sequence of asking these questions, ये जो मैंने आपको बताया इसमें पूरा दिखाया नहीं है. When these questions are asked in the proper sequence, that will lead people to go into think of this towards the empathy. That is a pre-organized, predetermined questions. That's what we would say in this. Okay. Now one more very apt question is, yes, what is the mantra you will give us to change the traditional methods? The best mantra is, as I say, change is permanent. So we have been used this educational training system for 100 years now, and we have seen it. This is not producing. We are all only producing job mongers. We are not ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ते नहीं है or something like that. We have to develop India as a manufacturing hub. Skill is very, very important, and skill has to be imparted. It cannot be taught. So if skill has to be imparted, it is as leaders, we have to take the responsibility in passing on the right legacy and how it is to be done. There's nothing secret in it. Because there's an old tradition ऐसा हो गया कि मैंने इतना मेहनत किया सीखने के लिए, मैं क्यों इतनी आसानी से पढ़ाऊं. So that mentality, we have to get rid of it, because knowledge is nobody's domain. We have to help our own people, our own organization. And then that is what अगर मेरे organization को बढ़ाना है, मेरे आदमी लोगों को capability मुझे बढ़ाना है. So that is what we have to do. At the end of the day, it is going to help mutually. That's what. Sir, you said that. Can I ask a question? Yes, sir. Please, sir. Please. Sir, you said that leaders have to lead by example. Yes, sir. Sir, sometimes the leaders themselves do not have a clarity of mind, and they are actually leading with the wrong examples. In such a situation, what happens? Oh, तो then अभी क्या तू ही बिगाड़े तू ही सवारे. We cannot. The thing is, as a parent, कल से रात को मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कल से रात को सोने से पहले ब्रश करके सोना. But if I don't do it, मेरे बेटा मुझे देखता है कि मुझे बोलते तू नहीं कर रहा है यार. But because he is a kid, he is not asking. But whereas this can happen in the organization. जैसे बॉस मुझे बोलता है कि कैसे करो और वो खुद नहीं करता है, खाली बैठा रहता है. So that is not going to create a good relation. If at all I am interested in my organization as a leader, I have to lead by example. That is what we always say. Leader का competencies रहता है, worker का skills रहता है. So ये competencies में they have to understand the business understanding is very, very important. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब manufacturing organization को एक university बना दो सिखाते रहो. नहीं. Not that we are going to do. We are going to capability development pertaining to my organization's outcome. उस हिसाब से ही उनको करना चाहिए. अगर if leader fails it, we have to change the leader. That is it. Nothing changes if nothing changes.
अशोक भाई, किसी क्या? ने पूछा है कि कौन सी बुक्स इस पे पढ़ना चाहिए। विद द परमिशन ऑफ दी गोपाल कृष्णन जी, मैं कह सकता हूँ कि आपने टोयोटो का भी नाम लिया था शुरू में, तो टोयोटो की 3 बुक मेरे पास लाइब्रेरी में। वन इज द टोयोटो अंडर फायर, टोयोटो वे ऑफ टोयोटा। सर मैं कॉन्वेंट स्टूडेंट नहीं हूँ, पर लोग समझ जाएंगे मेरे कहने का मतलब। टोयोटो वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिव हैबिट एंड टोयोटो कल्चर। सर ये जो तीनों बुक्स है वो आपके जो आपने जो अभी जो संबोधन किया है उससे काफी मैच करती है, लेकिन आपसे भी पूछा है कि आप कोई बुक सजेस्ट करेंगे क्या, तो कोई बुक आप सजेस्ट करेंगे? मैं वही बोलना चाहता हूँ। सी इसी सब्जेक्ट में ट्रेनिंग विद इन इंडस्ट्री करके ही बुक है। मोर देन द बुक देयर आर मैनुअल्स अवेलेबल। ट्रेनिंग विद इन इंडस्ट्री का मैनुअल रहता है, इसको किताब पढ़ के नहीं होता है। टोयोटा टैलेंट करके भी एक बुक है। बट मैं जैसे कि पहले भी कहा था, हम साइकिलिंग सीखें या तैरना सीखते हैं ना, वो किताब पढ़ के नहीं सीखते हैं। जब तक आप पानी में नहीं कूदोगे, जब तक आप खुद करोगे नहीं, आप नहीं होगा। भले सी आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम अ कंसल्टेंट, आप नॉट नेसेसरली काइजन कंसल्टेंट, एनी कंसल्टेंट, पहले जो इसमें एक्सपर्ट है उनसे आप एक बार करके देख लीजिए, थ्रू इट विद देयर सुपरविजन, उसके बाद आप करो। मैं ये नहीं कहता कि जिंदगी भर कंसल्टेंट के साथ करना है, बट इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल एक्सपर्ट, क्योंकि कभी कुछ गलत हो गया ना, सिखाना ही गलत हो गया ना, तो एवरीथिंग विल गो रॉन्ग. So let us not try that, but there are very good books. Training within industry is a good book. Toyota Talent is another good book in this particular subject. And Indian government के पास training within industry का manual भी है, cyclo-styled manual है, but I don't know whether industry ministry में से कोई आपको ये दे सकता है. It is at cost, but they have to धूल चटा के निकालना पड़ेगा, कहीं तो लॉकर में है वो. टोयोटा अंडर फायर के अंदर उन्होंने सर लीड बाय एग्जांपल को इम्पोर्टेंस दिया है, और इतना शानदार और इतना बढ़िया एग्जांपल दिया है उन्होंने कि उन्होंने बताया कि रिसेशन में अगर आपको आपके एम्प्लॉय को अगर सही करना है और खर्चे कम करना है, तो उन्होंने मैनेजमेंट की एक मीटिंग बताई और मैनेजमेंट में बगैर किसी को इन्फॉर्म करे 3 महीने तक के बिजनेस क्लास से वो लोग इकोनॉमी क्लास पे आए। उन्होंने कार चेंज करी, उन्होंने अपना पेमेंट 30% कम विड्रॉ किया, उन्होंने अपने खर्चे कपड़े हर चीज में कमी कर रही। तो मैनेज जो 30,000 जो लोग थे, उन्होंने मीटिंग लेके मैनेजमेंट को बोला कि आपने इतना सब किया, हम लोगों को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया, हम भी ये कर सकते थे करके। तो उन्होंने बताया कि पहले हम अपने ऊपर प्रयोग करना देखना चाहते हैं, उसके बाद लोगों को फॉलो करने लगा है। और उसके बाद उन्होंने मैट डिजाइन को जो चेंज किया, उसमें से उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको फायदा हुआ था. दैट वाज द सॉल्यूशन गिवन बाय देयर ओन एम्प्लॉइज. That is the biggest success of that. So it was the biggest example of lead by example, and then the proof of how the example converted into a practical solution. Yes. ये 2008 में अशोक भाई जो पहला रिसेशन आया था ना, उसके बाद उन्होंने बताया कि 10 कंपनियां बंद हो गई 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग की, और वो क्यों सर्वाइव हुए और क्यों ग्रो किए। तो उसका बहुत अच्छा बुक है वो, टोयोटा अंडर फायर. There is one question which Mr. Mohanlal Jain wants to ask. Yes, sir. Mohanlal ji, yeah, sir, please. Good evening, sir. I joined little late. Sir, what is the difference between Six Sigma and Kaizen, sir? That's all. Six Sigma एक बजूका है, आप मच्छर मारने के लिए यूज नहीं कर सकते हो. Six Sigma is a mathematical tool. Only elite people, no, they can use it. काइजन ऐसे एक सिंपल, सरल, आसान तरीका है, हर कोई यूज कर सकता है. That is as simple as that. सुई का अपना काम है, तलवार का अपना काम है, all are good. बट अपने को ये जानने की कौन सा मेरे लिए फायदेमंद होगा, उसको हम लोग अडॉप्ट करके जाए. और एक छोटा सवाल साहब, जब 0 टॉलरेंस एंड 100% परफेक्शन में 100% परफेक्शन कभी-कभी सरदर्द हो जाता है. सर ऐसा नहीं है, आप एक डब्बे में 0 टॉलरेंस एंड 100% ऐसे ही होनी चाहिए, ऐसे ही होनी चाहिए, ऐसे ही होनी चाहिए, तो थोड़ा उसमें ये है ना, ये एक यूटोपियन ड्रीम है. मतलब 100% कोई, भगवान खुद परफेक्ट नहीं है. नहीं, तो हम सब अलग अलग क्यों दिखते हैं, सब लोग एक जैसे दिखेंगे ना. भगवान खुद ऐसा नहीं है. हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी भी देख लीजिए, एवरीथिंग इज डिफरेंट. See, 100% perfection is the utopian dream. हम लोग क्या करते हैं, हम सब लोग ये perfection की तरफ हमारा सफर को जारी रखे हैं. So you may not achieve perfection in your journey, but at the least in the journey of perfection somewhere you will achieve excellence.
वो एक्सेलेंस को आप कर दीजिए. दैट इज व्हाट वी ऑलवेज से. इट इज अ पेरेनियल क्वेस्ट ऑफ सीकिंग परफेक्शन इन ऑल द प्रोसेस आई डू. खाने का प्रोसेस हो या टट्टी करने का प्रोसेस, एवरी प्रोसेस में परफेक्शन ढूंढिए. परफेक्शन ना मिला सही, एक्सेलेंस तो मिल जाएगा. दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. Great, sir. Great. Now one more last question I'll take. What's the difference between TQM and TWI? TQM is, how different is TQM is more of a, what I can say, it's a quality maintenance thing. It is more only pertaining to quality in the processes. Okay. Whereas TWI is irrespective of any industry, office, आदमी लोगों को ट्रेनिंग किया कैसे किया जाएगा, that is what it says. So these two are totally different from each other. And last question, Yes, is there any age till the training can be imparted? सर सीखने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी भी आप सीख सकते हो. बिकॉज हम लोग, प्रॉब्लम क्या हो गया पता है, हम लोग आजकल स्कूल या सीखते क्यों हैं, नौकरी में होने के लिए सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए. बट ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कभी भी सीख सकते हो. आप देखो मेरा उधर लाइब्रेरी है, देयर आर अराउंड 200 बुक्स ओवर देयर. उसके अलावा मेरे किंडल में इतने सारे बुक्स है, कभी इट्स एंडलेस. तमिल में एक कहावत है, so whatever I learned is only a fistful of sand. Whatever is left out is about the earth size. So there is no end, no age limit. जितना आपका ब्रेन एक्सेप्ट करता है उतना सीखते जाओ. Nothing wrong in it. That's what I always say. सर मैं एक बात भी कह सकता हूँ, मतलब जब तक लाइफ में आदमी का माइंड ओपन रहता है, हाँ सर, वो सीख सकता है. जिस दिन वो माइंड को बंद कर देता है, एज इररिस्पेक्टिव, माइंड बंद हो जाता है उसका, तो उसका लर्निंग बंद हो जाता है. यस, सीखने के लिए आपको. देयर इज वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम वन मिस्टर अतुल मेहरा. यस, आज हमारे इधर इलिटरेट लोग हैं तो न्यू ट्रेनिंग मेथड्स के. दिस इज व्हाट आई सेड. हम लोग ना सबको बुला के आज से मैं ट्रेनिंग दूंगा करके बोल दिया ना, एक शटर आ जाता है. क्यों सीखना यार, मैं तो काम करने के लिए आया, ऐसे करके. सो द फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू कजोल अप. That is what we say the first step. अगर आपने देखा होगा जॉब इंस्ट्रक्शन में, we call it prepare the worker. किसी चीज में सिखाने से पहले मैं मेरी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करूंगा ताकि easy in the right mindset to accept or adapt whatever I am going to teach him. जो भी मैं सिखाने जा रहा हूँ वो प्राप्त करने के लिए उसका mindset is easy in the right mindset. वो पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा, then only I will start training. It is something हमारा गुरुकुल में होता था. गुरुकुल में गुरु कभी किसी को कुछ सिखाते ही नहीं थे, जब तक वो शिष्य ना जाके गुरु अब सब सिखाने वाले हो. वो बोलेगा यार मैं जो कर रहा हूँ उसको तो अगर तू देखता रह गया ना तुम्हें सीखने को हो जाता था. दिस इज समथिंग लाइक दैट. We have to prepare. That is what we always call it as prepare the worker first. Then only present the operation. Don't simply jump just because supervisor ने बोल दिया कि HR ने बोल दिया मेरा टारगेट है so many training man hours देना है, ये बंदा फ्री है इसको ट्रेनिंग के लिए ले जाओ. ऐसा ट्रेनिंग देंगे तो जिंदगी में कोई कुछ सीखेंगे नहीं. We have to cajole them up. Even now today if somebody tells me you have to learn something new, I will always listen. मुझे क्यों सीखना यार करके. But I have to prepare myself somewhere out on that. ये लीडर के हाथों में है. First thing you prepare the worker, then you start presenting the operation. That means teaching them. Otherwise, your training efforts will fail. Open mind से बैठना पड़ेगा. They say कि the parachute only work when it is open. Yes, precisely. You said it. Okay, no problem. मैं करता हूँ. That is it. Okay, sir. I think we can wind up at this point of time. Thank you, sir. Thanks. Sir, I would personally like to give you a big hearted thank you. Thank you. For a wonderful presentation. Kaizen now has gone into our bloodline, I can tell you that. And we have all started appreciating every facet of Kaizen. You have so well described so many things, right from the way the leader should behave, like the worker should behave, how to prepare people, how to start getting them into the action, and how to really create
successful organizations who can, by building were successful teams. So I think it was a very educational, very interesting, and a very successful webinar for all of us. Yeah. My big thank you to you, sir, Yeah, and a very big thank you to all the viewers today who have joined in good numbers today. And we look forward to meeting you again next Sunday at 2 p.m. for another MindSpeak webinar. Till then, have a wonderful day and be safe and try to take care of yourselves. थैंक यू सर। भरत भाई ने पूछा कि मेरा टीका इतना लंबा है, so you can write it to me personally. That's a big explanation, but time is limited here. Okay. कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसा भी है, there is a scientific reason also, which I will explain on my mail. Always. Thank you, sir. Thanks for the opportunity. Thank you, sir. Thank you. Namaste. Namaste.